हेलो एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? एन इक्वेशन containing an independent variable, dependent variable, and differential coefficients of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation. So let us see some example of differential equation. Let us say we have differential equation something like this: dy by dx equals to 2xy. Okay, we have differential equation something like this: dy by dx equals to sin x plus cos x. We may have differential equation something like this: d cube y, third order derivative, by dx cube whole square plus 1 plus dy by dx whole square equals to 0. Okay, so these are some example of differential equation. So यहाँ पे independent variable, dependent variable और differential coefficient ये सब हो सकते हैं. ठीक है, so next is our what is order of differential equation, right? What is order of differential equation? So what is order? Order is the highest order derivative. This is highest order derivative. Highest order derivative. Okay, so let us say one example: d2y by dx square plus 3 into dy by dx plus 2y equals to e to the power x. So what is the highest order derivative? The highest order derivative is 2. Okay, so order is 2. Order is 2. Okay, let us say another example. Let us say we have differential equation d cube y by dx cube minus 6 into dy by dx whole square equals to 0, or let us say minus 4y equals to 0. So what is the highest order derivative? That is third order. So what is the order of this differential equation? That is 3. Okay, always remember, order of differential equation is positive integer. So order is a positive integer. Okay, now let us see what is degree of differential equation. So what is degree? Degree of differential equation is the degree of the highest order derivative. Okay, when differential coefficients are made free from radicals and fractions. So remember this: the degree of a differential equation is the degree of the highest order derivative is the degree of the highest order derivative when differential equation differential coefficients when differential coefficients are made free from radicals and fractions.
So let us say some example. Let us see some example. So this, let us say d cube y by dx cube minus 6 into dy by dx whole square minus 4y equals to 0. So what is the highest order? Highest order is d cube y by dx square. And what is the degree? To the power 1, right? Here dy by dx square. But highest order is d cube y by dx cube. So what is the power of this? Power is 1. So what is the degree? Degree is 1. Okay. So here order is 3 and degree is 1. Let us say another example. Let us see another example. X into d cube y by dx cube whole square plus dy by dx whole to the power 4 plus y square equals to 0. This is the differential equation. So highest order derivative is third order. So here order is 3 and what is the power? Power is 2. So degree is 2. Okay. So it's the differential equation of third degree and second degree and order 3. Okay. This is order. Now see here one important point is the differential coefficients should be made free from radicals and fractions. Let us see some examples of this. Let us say we have to find out order and degree of this x into dy by dx plus square root 1 plus dy by dx whole square. ओके सो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट के अंदर है dy by dx, इसको फ्री करना होगा. ओके इसको फ्री करना होगा. तो इसको अगर हम लोग फ्री करें तो वो साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग इधर वो साइड में स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं. तो इसको अगर स्क्वायर करें तो ये क्या होगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर दैट शुड बी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर. ओके सो यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में इसको अरेंज करें तो स्क्वायर में इसको ब्रेक कर देना और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एक साइड ला के इसको कॉमन ले लेना. तो ये इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy by dx whole square minus 2xy dy by dx plus y square minus 1 equals to 0. Okay, now this equation is radical free. Okay, मतलब साइन के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर dy by dx dy by dx ये सब नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिकल फ्री. ओके सो यहाँ पे हम लोगों का जो दिख रहा है कि जो यहाँ पे ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. ओके ये फर्स्ट ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स. सो जो ऑर्डर है वो 1 है एंड डिग्री इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर. तो पावर क्या है यहाँ पे 2. सो डिग्री इज 2. दिस इज योर ऑर्डर and this is degree. Degree is 2. So remember this is very important. Differential coefficients should be radical free and fractions. Let us see another example in order to clarify the topic. Let us say we have 1 plus dy by dx whole square to the power 3 by 2 k into d2y by dx to this. So it should be free from fraction. So here 3 by 2 is there, right? So squaring both sides we get 1 plus dy by dx whole square whole cube
equals to k square d2y by dx2 plus square. Okay, now this equation is radical free. Okay, so let us say we can arrange this as k square into d2y by dx2 whole square minus 1 plus dy by dx whole square cube equals to 0. So हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 2 और इसका पावर क्या है 2, राइट. सो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा 2, ऑर्डर क्या होगा 2 एंड डिग्री क्या होगा 2. ओके, ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर 2. तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, लेट अस सी अनदर एग्जांपल. Let us say we have to find out order and degree of d2y by dx2 whole square plus sine of dy by dx equals to 0. So यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है d2y by dx2, राइट. सो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा 2. ओके, मगर डिग्री डिफाइन करने के लिए the radicals, the differential coefficient that is dy by dx, d2y by dx2 should be radical free. But one this dy by dx ये देखो साइन के अंदर है, इसको हम लोग किसी भी तरीके से इसको रिमूव नहीं कर सकते. अगर दाहिने तरफ हम लोग ले साइन ऑफ dy by dx तो इधर हो जाएगा साइन इनवर्स d2y by, तो इसके अंदर फिर साइन इनवर्स के अंदर d2y by dx2 होल स्क्वायर हो जाएगा. तो इसको किसी भी तरीके से हम लोग रेडिकल फ्री नहीं कर सकते. तो इसका जो डिग्री होगा नॉट डिफाइंड, इसका जो डिग्री होगा नॉट डिफाइंड, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड. ओके, सो ऐसे ही तुमको करना है. नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, लेट अस सी आवर नेक्स्ट टॉपिक. Our next topic is formation of differential equation, formation of differential equations. डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ पे याद रखना जितना यहाँ पे कांस्टेंट होगा उतना बार ही उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है. लास्ट में जो इक्वेशन आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो हम लोग इसको क्वेश्चन से देखते हैं. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, form the differential equation of the family of curves represented by c into y plus c whole square equals to x cube, where c is a parameter, where c is a parameter. Okay, so let us see the solution of this. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है, मतलब इसको एक ही बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग का आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा. लेट अस से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये जो इक्वेशन है इसको बोथ साइड में डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये क्या हो जाएगा, सी कांस्टेंट है, पावर के लिए ट्वाइस वाई प्लस सी, और वाई के लिए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. ये हो जाएगा इक्वल्स टू 3x², राइट. so let us say this is our equation 1 and this is our equation number 2. ओके, तो यहाँ पे हम लोग
1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c इंटू वाई प्लस सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट शुड बी एक्स क्यूब बाई 3x स्क्वायर। वैसे सी चला गया, एक्स क्यूब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जाएगा। ठीक है, सो ये क्या हो गया, यहाँ से एक वाई प्लस सी जाएगा, तो यहाँ पे हो गया वाई प्लस सी इक्वल्स टू 2x, यहाँ पे x है 3 है, 2x बाई 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे c क्या होगा, 2x बाई 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। सो ये जो c मिला है, इसको जो मेन इक्वेशन है हम लोग का, 1 नंबर इक्वेशन, वहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, सो मेन इक्वेशन क्या था, c इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। यहाँ पे अगर हम लोग c का वैल्यू यहाँ पे बैठा दे, तो c का वैल्यू क्या है, 2x बाई 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू 2x बाई 3, ओके, 2x बाई 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे होगा 2x बाई 3 यहाँ पे जो 1 नंबर इक्वेशन था वो है c इंटू वाई प्लस सी होल स्क्वायर, सो वाई प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अगर बैठा दें तो ठीक है, तो लेटर से वी हैव c का वैल्यू है 2x बाई 3 डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे y की जगह बैठ y जैसे ऐसे रख दो यहाँ पे, सो y प्लस यहाँ पे होगा 2x बाई 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। यहाँ से y और y चला जाएगा, हम लोग का जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, दिस इज 2 बाई 3 स्क्वायर दैट इज 4 बाई 9 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 2x बाई 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स। सो यहाँ पे हो जाएगा 8 बाई 27, राइट, 8 बाई 27 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 दैट इज क्यूब माइनस 4 बाई 9 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई दैट इज इक्वल्स टू एक्स। तो 27 से अगर सेम कर दें तो हो जाएगा 8x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब माइनस 12y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 27x। so this is your required differential equation। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे फॉर्म करेंगे। लेट अस से दिस इज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, find the differential equation find the differential equation of the family of curves of the family of curves y is equal to a sin bx plus c, और यहाँ पे बोल दिया है कि a and c are parameters। a and c are parameters, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन में कितना कांस्टेंट है, कितना पैरामीटर है, 2। तो अगर 2 पैरामीटर है तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, राइट। कितना कांस्टेंट रहेगा इसको उतना
जितना पैरामीटर रहेगा उसको उतना डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको पहले लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी। इसको अगर डिफरेंशिएट करें बोथ साइड में x के रिस्पेक्ट में, सो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए साइन के लिए हो जाएगा कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, अंदर बी एक्स के लिए b बाहर आएगा, x के लिए 1 और c के लिए 0। ये हो गया। फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, और अंदर से b निकलेगा तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर, एक्स के लिए 1 सी के लिए 0। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू था ए साइन बी एक्स प्लस सी, सो ए साइन बी एक्स प्लस सी की जगह y लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर वाई। सो इक्वेशन क्या हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड differential equation. Okay, this is your required differential equation. Now let us see another problem. This is your third question. Find the differential equation. Find the differential equation of all the circles in the first quadrant which touch the coordinate axis. Right? So इसका जो इक्वेशन है, find the differential equation of all the circles in the first quadrant which touch the coordinate axis. तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। which touch the coordinate axis मतलब दोनों एक्सिस को टच करेगा। ये सर्कल कैसा होगा, ऐसे सर्कल हो गया, ठीक। लेट अस अज्यूम इसका जो रेडियस है ए है, तो ये भी ए होगा क्योंकि ये भी ए है, तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इस सर्कल के इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और आर इज द रेडियस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पे ए है पैरामीटर, राइट, क्योंकि यहाँ पे ए चेंज हो सकता है, रेडियस यहाँ पे चेंज हो सकता है, सो ए हम लोग का यहाँ पे है पैरामीटर। सो एक ही पैरामीटर है, इसका मतलब क्या करना है हम लोग को, एक ही बार इसको डिफरेंशिएशन करना है, राइट। सो इसको अगर डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स माइनस ए प्लस ट्वाइस वाई माइनस ए, और वाई के लिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज 2 को लेके 0 कर दो, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो a है वो क्या हो जाएगा, x प्लस, ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे a है और यहाँ पे a इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो दोनों को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो उसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो यहाँ से a मिल गया हम लोगों को। नाउ लेट अस से let t इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ताकि यहाँ पे बार बार डी वाई बाई डी एक्स ना लिखना पड़े। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे a हो जाएगा x प्लस पी
वाई बाई 1 प्लस पी। ये जो इक्वेशन है, ये एक नंबर जो इक्वेशन था वहाँ पे बैठा देते हैं एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वहाँ पे बैठा देते हैं ए का वैल्यू। तो वहाँ पे अगर ए का वैल्यू बैठा दें तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स प्लस पी वाई बाई 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई माइनस ए होल स्क्वायर, दैट इज वाई माइनस एक्स प्लस पी वाई बाई 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस पी वाई बाई 1 प्लस पी स्क्वायर। ओके, तो इसको स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे 1 प्लस पी इंटू एक्स एक्स होगा, 1 प्लस पी का स्क्वायर 1 प्लस पी का स्क्वायर 1 प्लस पी का स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स और एक्स चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू पी माइनस पी वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस पी वाई का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लोग पी को कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे स्क्वायर का 1 ही होता है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस 1, राइट। ये हो जाएगा एक्स प्लस पी वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सो दिस वुड बी एक्स माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस वुड बी पी स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा एक्स प्लस पी वाई का स्क्वायर। सो ये हो गया एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, 1 प्लस पी क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, सो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ये हो गया तुम लोगों का रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं हम लोग, इसका एक दो एग्जांपल हम लोग देखे हैं, बाद बाकी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग का दो सॉल्यूशन रहता है। एक सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन और एक को बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। राइट, जहाँ पे अगर तुम्हारा जो तुमको कुछ वैल्यू बोल देगा, वो वैल्यू को अगर तुम जनरल सॉल्यूशन में बैठा दोगे तो यहाँ पे वही हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो यहाँ पे जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा आ, आ, वही हो जाएगा तुम्हारा द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स एज मेनी एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर ऑर्डर 2 है तो वहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उसका हम लोग बोल सकते हैं कि वही तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। अगर एक एग्जांपल देखें हम लोग, लेट अस से वी हैव y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। ओके, इसका अगर दो कांस्टेंट है, दो पैरामीटर है, तो इसका अगर दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ जाएगा d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2, राइट। तो अगर इसका ऑर्डर 2 है और यहाँ पे कांस्टेंट भी हम लोग का कितना है, 2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो y इक्वल्स टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या?
तो अगर जनरल सॉल्यूशन लेट अस से यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं. दिस वुड बी आवर क्वेश्चन नंबर 4. show that xy equals to a into e to the power x plus b into e to the power minus x plus x square is a solution of the differential equation this x d2y by dx2 plus twice dy by dx minus xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये वाला है. तो ये हम लोगों को दिखाना है. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एक्स वाई इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दिया है. हाँ, इसको अगर हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करें तो ये वाला आना चाहिए. राइट, तभी सॉल्यूशन होगा. यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2 और कांस्टेंट कितना है 2. ये दिखाना है हम लोग को. राइट, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेट अस से एक्स वाई इक्वल्स टू क्या बोलते हैं ए टू द पावर एक्स प्लस बी ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इन बोथ साइड. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रखे तो वाई के लिए डी वाई बाई डी एक्स इंटू भी रूल लगा देते हैं. वाई रखे तो डी एक्स के लिए 1 और यहाँ पे ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएट ए टू द पावर एक्स प्लस और ई टू द पावर माइनस एक्स की टू द माइनस एक्स और -1 बाहर आएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा माइनस बी इंटू ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के लिए 2x. इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं. सो यहाँ पे फिर से यू इंटू बी लगाएंगे. सो एक्स रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स. ओके, डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे एक्स के लिए 1, फिर यहाँ पे वाई के लिए फिर से डी वाई बाई डी एक्स होगा. तो ये हो जाएगा ए इंटू ई टू द पावर एक्स. इसका डिफरेंशिएशन फिर से वही होगा, यहाँ से माइनस बाहर आएगा. सो प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2. राइट, ये वाला हो गया. तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ट्वाइस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2. ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या करना है, ए और बी को हटाना है. राइट, सो एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ट्वाइस डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे हम लोग 1 नंबर इक्वेशन विच इज दिस. इसको अगर हम लोग बोले कि ये 1 नंबर इक्वेशन है. ठीक है, और इसको अगर हम लोग बोले कि ये 2 नंबर इक्वेशन है. तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे कि a इंटू टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू टू द पावर माइनस एक्स. उसकी जगह क्या लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर. राइट, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर और 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, ये आ गया हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन और ये राइट हैंड साइड में क्या आया 0. तो मिला लो एक्स इंटू डी टी वाई बाई डी एक्स टू प्लस ट्वाइस डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स का माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो ये हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हो गया सॉल्यूशन. राइट, तो जितना ऑर्डर रहेगा उतना कांस्टेंट रहेगा उधर, तो वाला हो जाता है सॉल्यूशन. तो आई थिंक ये तुम लोगों को समझ में आया होगा. फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप में जाते हैं जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम
इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को अगर हम लोग देखें तो लेट अस से एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। Question is, show that y equals to x square plus 2x plus 1 is the solution of the initial value problem. Initial value problem d cube y by dx cube equals to 0, given y of 0 equals to 1, y prime 0 मतलब first derivative equals to 2, and y double prime that is second derivative it is 2. ओके ऐसा बोल दिया है। तो गिवन क्या है? गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड में, तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस 2, राइट। इसको अगर और एक बार डिफरेंशिएट करें बोथ साइड में तो ये क्या हो जाएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस इक्वल्स टू 2, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू 2। और इसको और एक बार डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2 का होगा 0। तो यही वाला है हम लोग का गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हम लोग देखे 2x प्लस 2, डी टू वाई बाई डी एक्स हम लोग देखे 2, और y हम लोग देखे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग को बोल दिया है, देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? y ऑफ 0 1 मतलब इसका मतलब होता है when x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1। इसका मतलब होता है when x इक्वल्स टू 0 y डैश्ड हो जाएगा हम लोग का 2, मतलब डी वाई बाई डी एक्स है 2। और यहाँ पे when x इक्वल्स टू 0 डी टू वाई बाई डी एक्स टू है 2। इसे वैल्यू हम लोग को बोल दिया है, तो बेटा देते हैं x 0 एंड y 1। तो ये क्या हो जाएगा? x 0, तो यहाँ पे बैठा दे अगर x 0 तो 0 प्लस 0 प्लस 1, ओके। सो ये हो जाएगा y ऑफ 0 एंड डी वाई बाई डी एक्स when यहाँ पे क्या बोला है? डी वाई बाई डी एक्स when x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 बैठा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। और यहाँ पे डबल प्राइम है, तो डबल प्राइम में यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, तो x है नहीं, तो यहाँ पे अगर हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स टू when x इक्वल्स टू 0 बैठे तो 2 ही मिलेगा, राइट। तो ये हम लोग का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन of the differential equations of first order and first degree। इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? तो ये जो फंक्शन है इसको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल जो इक्वेशन है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में ये होगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक कर्व का टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है? स्लोप। जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो इसका मतलब जो लेट अस से ये एक नंबर इक्वेशन, सो द इक्वेशन 1
can be known as the equation which establishes the relationship between the coordinates of points and the slope of the tangent, that is dy by dx to the integral curves at that point. तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय दिस इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग दोज कर्व्स। इसका अगर सॉल्व करें, सॉल्विंग इसका अगर सॉल्व करें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फाइंडिंग दोज कर्व्स, फाइंडिंग those curves, finding those curves for which the direction of tangent, for which the direction of tangent at each point coincide with the direction of the field. Okay, all the curves represented by the general solution when taken together will give the locus of the differential equation. Okay, so इसका जो general solution का अगर सारा कर्व ले लें तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग all the curves represented by the general solution when taken together will give the locus of the differential equation. Okay, तो क्या देगा? locus देगा. Since there is one arbitrary constant in the general solution of the equation of first order, the locus of the equation can be said to made up the single infinity of curves. Okay, ये conclusion हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यही हम लोग का यहाँ पे टॉपिक है। ओके, सो इसका सॉल्विंग का बहुत सारा टेक्निक होता है, हम लोग सब टेक्निक देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, अगर यहाँ पे ऐसा टाइप है dy by dx इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? dy को रखेंगे और x के साथ x को दे देंगे एफ एक्स डी एक्स, फिर वो साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम लोग का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो प्लस सी भी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आएगा हम लोग का जनरल सोल्यूशन। तो इस फॉर्मेट में, ओके, ये एक नंबर फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Let us say we have to solve this question: e to the power x plus e to the power minus x dy by dx equals to e to the power x minus e to the power minus x. ओके, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? लेट अस से, तो यहाँ पे क्या, इस देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो है तुमको हर फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करना होगा। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द फॉर्मेट, तो इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान हो जाता है। ये पूरा इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है।
तो यहाँ पर हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल टू बोल सकते हैं e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस। देखो यहाँ पे f ऑफ x आ गया और यहाँ पे dy बाई डी एक्स, तो ये पहला फॉर्मेट में आ गया, राइट। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, dy को रखेंगे और dx को दाहिने तरफ भेज देंगे, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स dx, राइट। अब सेकंड में क्या करना है, बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर देना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या हो जाएगा, y, और यहाँ पे प्लस सी दे देना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। हम फिर से बोल रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट को मैं एक बार आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बाद बाकी पूरा इंटीग्रेशन है, हम लोग का इंटीग्रेशन अपलोड हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट इंटीग्रेशन ईच एंड एवरी मेथड वहाँ पे डिस्कस किया गया है, हर मेथड का एग्जांपल दिया गया है, क्वेश्चन बनाया गया है, 120 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, डिफिनेट इंटीग्रल और इंडिफिनिट इंटीग्रल का। उसको पहले अच्छे से देख लो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। एटलीस्ट तुम लोग के लेवल पे जब इंजीनियरिंग में उठोगे तो ये और भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वो अलग बात है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये e टू द पावर x e टू द पावर x होगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स होगा डिफरेंशिएशन, फिर dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस dx क्या लिखेंगे, dt, ठीक है, बाई t प्लस c। तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t क्या है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। तो इसमें देखो, इस पे हम लोग का यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, राइट, पूरा इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। सो आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक साइड अगर पूरा फंक्शन ऑफ x है, उसके साथ dx दे देना है, अगर dx हम लोग उसके साथ दे दें तो हम लोग अलग से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। ये पूरा हम लोग का इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हर मेथड का हम लोग दो तीन सवाल करेंगे, ठीक है। उससे हम लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। लेट से यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। तो यहाँ पे देखो f ऑफ x है, तो डी एक्स उस दाहिने तरफ भेज देंगे तो ये आंसर मिल जाएगा, राइट। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इंटू डी एक्स। नेक्स्ट काम क्या था, इंटीग्रेशन दे देना है बोथ साइड में, ठीक है। सो यहाँ पे इवन पावर में है, राइट। सो यहाँ पे साइन टू द पावर कॉस टू द 4x से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस टू द 4x हो जाएगा, न्यूमरेटर में कॉस टू द 4x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1 बाई कॉस टू द 4x हो जाएगा, सेक टू द पावर 4x बाई ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4x प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 10 टू द पावर 4x dx। देखो ये पूरा इंटीग्रेशन है, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन से यहाँ पे कोई मतलब है ही नहीं, बस तुमको बस ये जानना था कि बॉस dx को इधर देके इंटीग्रेशन करना है, बाद बाकी पूरा इंटीग्रेशन है। तो पहले इंटीग्रेशन का वीडियो देख लो अच्छे से। तो ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस 10 टू द पावर 4x। सो एक्स सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग 1 प्लस 10 टू द 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, राइट। सो एक ही साथ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ओके। फिर हम लोग यहाँ पे लेटर से t को हम लोग 10x लेते हैं, तो यहाँ पे dt हो जाएगा 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, dt। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ y dy क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, dt। तो यहाँ पे dt लिख दिए, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर होगा ऊपर, और नीचे होगा 1 प्लस टी टू द पावर 4, राइट। तो यहाँ पे फिर से इवन पावर में है, तो हम लोग टी स्क्वायर से ऊपर नीचे न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या होगा, 1 प्लस
1/t² बाई t² प्लस ये t⁴/t², दैट इज t², यहाँ पे 1/t², 1/t² dt। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम लोग अरेंज कर लेते हैं। y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ऊपर क्या है 1/, ऊपर है हम लोग का 1 + 1/t², मतलब नीचे जो भी लिखेंगे उसका डिफरेंशिएशन ऊपर 1 + 1/t² होना चाहिए, राइट। तो इसका हम लोग यहाँ पे 2t × 1/t लिखेंगे और -2 कर देंगे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं t - 1/t का स्क्वायर प्लस 2, राइट। t - 1/t को अगर हम लोग इधर से t - 1/t को हम लोग u ले लेते हैं, तो t का हो जाएगा 1 डिफरेंशिएशन और -1/t का हो जाएगा +1/t² dt इक्वल्स टू du। तो 1 + 1/t² dt, इसकी जगह क्या बैठा सकते हैं du, और नीचे क्या हो गया u², 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/x² + a², दैट इज 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a प्लस c। u क्या है t - 1/t, सो 1/√2 tan इनवर्स t - 1/t बाई √2 प्लस c, और t को हम लोग tan x लिए थे, तो 1/√2, यहाँ पे y था लेफ्ट हैंड साइड में, 1/√2 tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा tan x, 1/tan x दैट इज cot x बाई √2। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो पहला फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया हो। तो सिमिलरली जो सेकेंड फॉर्मेट है उसमें क्या होगा, सेकेंड फॉर्मेट में क्या होगा, जो ये dy/dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx/dy, अगर ऐसा है तो dx/dy इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/f(y), फिर यहाँ पे dy को दाहिने तरफ भेज देना है, सो dx इक्वल्स टू dy/f(y), फिर इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर लिखे हैं तो एक क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये नंबर 8 क्वेश्चन, let us say we have to solve this differential equation dy/dx plus y equals to 1। पहले फॉर्म आइडेंटिफाई करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो dy/dx, y को उधर लेके जाएंगे तो 1 - y हो गया, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ y है, राइट। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, dx/dy इक्वल्स टू बोल सकते हैं 1/1 - y, सो dx क्या हो गया dy/1 - y, वो साइड में क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होगा x, और ये y के बगल में माइनस है, तो ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ 1 - y, और y के बगल में -1 है तो -1 से डिवाइड करना होगा, राइट, प्लस सी। तो ये हो गया हम लोगों का रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, सो थर्ड मेथड देख लेते हैं। थर्ड मेथड है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है, x के साथ x लाएंगे, y के साथ y लाएंगे। ठीक है, x के साथ x को रखना है और y के साथ y को रखना है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको दिया जाएगा, पहले तुमको वो वाला आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मेथड से करेंगे। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ठीक है, दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सो लेट अस से क्वेश्चन नंबर 9,
e to the power x square root of 1 minus y square dx plus y by x into dy। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो e to the power x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर dx, यहाँ पे इसको टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो माइनस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई। राइट, तो x e to the power x हम लोग लिख सकते हैं, इसके साथ dx रखेंगे और y के टर्म को दाहिने तरफ लिखेंगे। तो ये क्या होगा, y बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो क्या हो गया, देखो y के साथ सारा y का टर्म, x के साथ सारा x का टर्म, dx के साथ सारा x का टर्म। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल। राइट, अब नेक्स्ट काम क्या है, बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये बाई पार्ट्स का फॉर्मेट में है, तो हाईलाइट से हम लोग एक्सपोनेंशियल लास्ट में रहता है, तो ये फंक्शन 2 लेंगे, ये फंक्शन 1 लेंगे। तो इसका जो बाई पार्ट्स होगा, e टू द पावर x रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x को रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, तो यहाँ पे पहले मिलेगा x इंटू e टू द पावर x माइनस, फिर यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ x दैट इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर x dx। ओके, अगर बाई पार्ट्स में दिक्कत है तो इंटीग्रेशन का वीडियो देख लो, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे लेटर से t इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, सो डी टी क्या हो जाएगा, माइनस 2y dy। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे dy की जगह हम लोग लिख सकते हैं -1/2y। राइट, माइनस, और y dy की जगह लिख सकते हैं -1/2 dt। तो ये हो जाएगा +1/2 इंटीग्रेशन dt बाई रूट टी implies x e to the power x minus integration e to the power x dx equals to हाफ ऑफ, ये हो जाएगा t to the power माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, सो t to the power हाफ बाई हाफ प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया x e to the power x, e to the power x, e to the power x, ये हो जाएगा हाफ और हाफ चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट टी प्लस सी। दिस इम्प्लाइज e to the power x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था ये हम लोग का हो गया उसका सॉल्यूशन। तो हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल जो फॉर्म है उसके रिलेटेड। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। लेट अस से वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, so this will be our question number 10। question number 10, okay, find the equation of the curve through the point 1, 0 if the slope of the tangent, if the slope of the tangent, if the slope of the tangent to the curve at any point, at any point x comma y is y minus 1 by x square plus x। ओके, सो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व through the point 1 comma 0 if the slope of the tangent to the curve at any point x comma y is y minus 1 by x square plus x। So let us see the solution। Let p x comma y be an arbitrary point on the curve, be an arbitrary
पॉइंट ऑन द कर्व। सो स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स, राइट। सो dy बाई डी एक्स स्लोप बोल दिया है तुमको y माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये स्लोप बोल दिया है, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दैट शुड बी dy बाई y माइनस वन। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल हो गए, एक्स के साथ एक्स, dy के साथ y। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, राइट। डी एक्स इक्वल्स टू वन बाई वाई माइनस वन डी वाई। तो बोथ साइड में अगर इंटीग्रेशन कर दे तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स माइनस log ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल्स टू log ऑफ वाई माइनस वन प्लस log ऑफ सी। लॉग सी भी ले सकते हो, लॉग सी हम लोग इसीलिए लिए ताकि हम लोग का जो इक्वेशन है वो देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो ये log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी, दैट इज log ऑफ ए बाई बी, और ये हो जाएगा log ऑफ ए इंटू log ऑफ बी, दैट इज log ऑफ ए इंटू बी। तो सी इंटू वाई माइनस वन, तो log log यहाँ पे चला जाएगा, तो ये एक्स बाई एक्स प्लस वन इक्वल्स टू हो जाएगा सी इंटू वाई माइनस वन। तो तुमको बोल दिया है, वैल्यू बोल दिया है, और पॉइंट बोल दिया वन कॉमा जीरो, मतलब एक्स है वन, वाई है जीरो। सो एक्स वन मतलब ये हाफ इक्वल्स टू सी इंटू जीरो माइनस वन, ओके। सो यहाँ से सी का वैल्यू आ गया माइनस हाफ, वाला हाफ यहाँ पे बैठा दो माइनस हाफ, तो ये हो गया एक्स प्लस वन इंटू वाई माइनस वन, एक्स प्लस वन को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो, और सी है माइनस हाफ, तो इधर हो जाएगा टू एक्स, ओके, माइनस हाफ, तो इधर हो जाएगा टू एक्स। सो ये हो जाएगा प्लस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये है इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये हो गया इक्वेशन ऑफ द कर्व, ओके। हेलो, तो हम लोग अभी देख लेते हैं जो हम लोग का जो नेक्स्ट फॉर्मेट है, तो ये वाला फॉर्मेट था हम लोग का तीन, ओके। सो 4 नंबर फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं, वो है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो इसका मतलब पहले हम लोग को देख के ये लगेगा नहीं कि ये वेरिएबल सेपरेबल है, मगर ये इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगर इसका जो फॉर्मेट है अगर देखें तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पे जो ax प्लस बी वाई प्लस सी है इसको हम लोग भी लेंगे, भी लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, we have to solve sin inverse of dy by dx equals to x plus y, we have to solve this, right। तो स्टार्ट करते हैं। तो साइन को उधर भेज देते तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो जो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको भी लेना है, राइट। सो लेट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू भी, बोथ साइड में डिफरेंशिएट करें तो एक्स के लिए वन, वाई के लिए डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स, राइट। सो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस वन, ओके। सो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे बैठा देते हैं, क्या मिला, डी वी बाई डी एक्स माइनस वन।
और ये हो गया साइन ऑफ बी। देखो ये कुछ लग रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल, जैसे ये डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ऑफ बी, राइट। सो ये हो जाएगा डी वी बाई 1 प्लस साइन ऑफ बी इक्वल्स टू डी एक्स। वो साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, सो ये होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस से इसको रैशनलाइज कर देते हैं 1 माइनस साइन बी से। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन बी बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर बी डी बी। Okay, that is integration of dx. This implies integration of dx equals to integration 1 minus sin b by cos square b dv। तो ये क्या हो गया, cos square b से अगर डिवाइड करें तो ये हो गया sec square b minus sin b by cos b, that is tan b, 1 by cos b, that is sec b dv। Okay, so integration of dx होता है x, sec square b dv होता है tan b, से हो जाएगा tan b, और sec x tan x का होता है sec x, से हो जाएगा sec b प्लस सी। ठीक है, और x इक्वल्स टू tan ऑफ x प्लस वाई माइनस sec ऑफ x प्लस वाई प्लस सी। ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। ओके, सो एक और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ताकि ये वाला हर मेथड से हम लोग दो दो क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 12, x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई, वाई ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते थे, ऐसे हम लोग को एज्यूम करना होगा। सो लेट अस से dx का कंपोनेंट अगर एक साथ रखे तो dx इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ पे dx, तो dx अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स, दैट शुड बी dy ऑफ x माइनस वाई, उधर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इंटू डी ऑफ वाई। सो दिस इम्प्लाइज dy बाई dx क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस वाई माइनस 1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, नाउ उस फंक्शन को हम लोगों को कुछ एज्यूम करना है, लेट x माइनस वाई, इसको भी ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वाला बैठा देते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या है, v, सो v माइनस 1 बाई v प्लस 1। दिस इम्प्लाइज डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा v माइनस 1 बाई v प्लस 1 प्लस 1। इसको एलसीएम करेंगे तो यह जाएगा 2v बाई v प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ के v के साथ v हम लोग दे सकते हैं, तो इससे ये क्या हो जाएगा, v प्लस 1 बाई 2v इंटू डी वी, 2 को उधर दे देते हैं, 2 डी एक्स, बोथ साइड में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई वी डी वी, दैट इज ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो ये क्या हो गया, 1 डी वी दैट इज वी प्लस 1 बाई वी का क्या होगा, लॉग ऑफ वी, लॉग ऑफ वी इक्वल्स टू
2x plus c. This implies b हम लोग का x minus y plus log of mod of x minus y equals to 2x plus c. से हो गया log of mod of x minus y equals to x plus y plus c. अब यहाँ पे तुमको क्या कंडीशन बोल दिया, y of 0 equals to -1. दैट मीन्स when x equals to 0 y is -1. यहाँ पे बैठा दो x0 y -1. तो ये हो जाएगा x0 y -1 दैट इज log of 1 -1 plus c. तो c log 1 is 0, सो c हो गया 1. उसको यहाँ पे बैठा दो, तो हम लोग का जो इक्वेशन आ गया वो क्या आ गया, log of mod of x minus y equals to x plus y plus 1. x plus y plus 1 1. तो यहाँ पे e है, तो mod of x minus y क्या हो जाएगा, e to the power x plus y plus 1. तो x minus y हो गया प्लस माइनस, मॉड उठाएंगे तो प्लस माइनस e to the power x plus y plus 1. Okay, understand? Now let us see our next format. Our next format is a format number 5. ये क्या है, homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation. Function f of xy is called homogeneous function of degree n if f of lambda x comma lambda y equals to lambda to the power n of f of x comma y. ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर हम लोग लिख सकेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का homogeneous differential equation, right? So let us say कोई homogeneous differential equation है. Let us say we have one equation f of x comma y is x square plus 2xy x square plus 2xy. तो यहाँ पे क्या बताएंगे, x के जगह x लैम्डा, y की जगह y लैम्डा. सो ये क्या हो जाएगा, f of lambda x, let us say this is f1 of lambda x lambda y क्या हो जाएगा, lambda x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस lambda x इंटू lambda y. तो ये क्या हो जाएगा, lambda स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस lambda स्क्वायर एक्स वाई. तो यहाँ से lambda स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy. और ये वाला क्या था हम लोग का, f ऑफ एक्स वाई. सो lambda स्क्वायर इंटू f ऑफ एक्स वाई. तो इस फॉर्मेट में हम लोग अरेंज कर लिए. यहाँ पे डिग्री ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है 2, राइट? सो इट्स ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. ओके, अगर कोई इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन है तो उसको हम लोग y बाई एक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, उसको y बाई एक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग. तो लिखने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा तुम लोगों का वो होगा y इक्वल्स टू y की जगह बैठाना है वी एक्स, फिर वो साइड में डिफ्रेंशिएट करके हम लोग का आंसर लिखना होगा. ठीक है, तो याद रखना कोई भी इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको y बाई एक्स के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं. तो एक बार हम लोग y बाई एक्स के फॉर्मेट में उसको लिख ले, उसके बाद हम लोग का क्या होगा, y इक्वल्स टू वी एक्स लेना है. उसके बाद बहुत सारे डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स की जगह वैल्यू बैठा के करना है. सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये अभी क्लियर हो जाएगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. सो क्वेश्चन नंबर 13,
So we have to solve this differential equation x square minus y square into dx plus 2xy dy equals to 0. Given that y equals to 1 when x equals to 1. Okay, we have to solve this differential equation. So आंसर देख लेते हैं इसका. तो इसको हम लोग पहले देखते हैं कि ये y बाई एक्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स. ये हो गया माइनस 2xy dy. सो ये dy बाई डी एक्स क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy. ठीक है, तो देखो इसको उल्टा करके लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस कॉमन ले बाई 2xy. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, नहीं तो यहाँ पे हम लोग एक्स वाई से अगर डिवाइड करें तो ये वाई बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ से अगर एक्स वाई से डिवाइड करें तो ये एक्स बाई वाई हो जाएगा, मतलब 1 बाई वाई बाई एक्स. राइट, और नहीं तो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा वाई बाई एक्स. मतलब ये पूरा इक्वेशन वाई बाई एक्स फॉर्मेट में है, मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, y इक्वल्स टू क्या लेना है, dx लेना है. बहुत सारे डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स हो जाएगा डी एक्स के लिए 1 एक्स रखेंगे तो डी बाई डी एक्स. ठीक है, तो अब हम लोग का काम है कि dy बाई डी एक्स के जगह ये बैठाना है v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और y इक्वल्स टू क्या लिए हम लोग वी एक्स. तो ये क्या होगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई y की जगह लिखेंगे वी एक्स, तो ये हो जाएगा ट्वाइस v. ओके, y इक्वल्स टू है v इंटू एक्स, तो ट्वाइस v इंटू एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके इसको हम लोग काट दें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 बाई ट्वाइस ऑफ v. तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 बाई ट्वाइस ऑफ v माइनस ऑफ v. तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ v, और x इंटू डी वी बाई डी एक्स ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2v. तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं यहाँ पे. राइट, सो 2v बाई वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी, और यहाँ पे माइनस डी एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं. बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर देते हैं. राइट, तो ये क्या हो जाएगा, देखो वी स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, क्योंकि वी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे मॉड नहीं देने से चलेगा. सो माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी. सो दिस implies log of b square plus 1 plus log of x mod x equals to log of c. c की जगह हम लोग log c लिख सकते हैं. राइट, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा. that is log of a into log of b, that is log of a into b square plus 1 into mod of x equals to c. so log of v क्या है, y इक्वल टू वी एक्स है तो v होगा y बाई एक्स. तो ये हो गया वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी. तो ये उधर जाएगा तो
हो जाएगा ये, यहाँ पे log ऑफ c लिखो, log ऑफ c। तो दोनों साइड से log उठा दो, दोनों साइड से log उठा दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स से एक्सेस काटेगा तो उधर मॉड एक्स जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू मॉड ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक्स इक्वल्स टू वन, वाई इक्वल्स टू वन, वाई एक्स इक्वल्स टू वन। यहाँ पे बैठा दो एक्स वन और वाई वन, मतलब ये हो जाएगा सी इक्वल्स टू हो जाएगा टू, राइट, सी इक्वल्स टू हो जाएगा टू। हम लोग का जो सोल्यूशन है वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू मॉड ऑफ एक्स। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स। इसका ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। अब एक चीज़ देखो, ऐसा नहीं है कि वाई बाई एक्स फॉर्मेट में रहेगा, एक्स बाई वाई फॉर्मेट में भी रह सकता है। उस जगह में हम लोग एक्स बाई वाई को भी लेंगे, वहाँ पे वाई बाई एक्स को भी लिए थे, यहाँ पे एक्स बाई वाई को भी लेंगे। एक क्वेश्चन से देख लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, यहाँ पूरा एप्लीकेशन इंडिकेशन का है, तो इंडिकेशन तुम सही से कर लोगे और फॉर्मेट अगर तुम एक बार आइडेंटिफाई कर लोगे तो ये बहुत ही आसान है डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट्स सी 14 नंबर क्वेश्चन, we have to solve 2y e to the power x by y into d of x plus y minus 2x e to the power x by y dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि dx बाई dy अगर लिखे तो इसको राइट हैंड साइड में लेके जाए, ओके, तो ये हो जाएगा 2x इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई माइनस वाई। ठीक है, राइट हैंड में से साइड में जाएगा तो माइनस होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस, तो ये वाला 2x इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई टर्म पहले आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2y e टू द पावर एक्स बाई वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो एक्स बाई वाई का फॉर्मेट, वाई से अगर डिवाइड कर दो ऊपर नीचे तो ये एक्स बाई वाई हो जाएगा, यहाँ पे वाई कैंसिल हो जाएगा और पूरा इक्वेशन में एक्स बाई वाई फॉर्मेट है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू वी वाई, वाई इक्वल्स अगर वाई बाई एक्स फॉर्मेट में है तो वाई इक्वल्स टू वी एक्स लोगे, और अगर एक्स इक्वल्स टू वी वाई एक्स बाई वाई फॉर्मेट है तो एक्स इक्वल्स टू वी वाई लेना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो वाई के रेस्पेक्ट में, सो ये डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा वी, वाई के लिए 1 प्लस वाई रहेगा तो डी वी बाई डी वाई। तो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, सो डी एक्स बाई डी वाई की जगह क्या लिखेंगे, वी प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू 2, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू वी वाई लेंगे और वाई यहाँ से कॉमन जाएगा, नीचे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2v e टू द पावर v माइनस 1 बाई 2 e टू द पावर v माइनस b। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम लोग का क्या था फॉर्मेट में, एक्स इक्वल्स टू वी वाई, तो वाई कॉमन लिए थे यहाँ पे, तो ये हो गया वाई वाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो वाई इंटू ई टू द पावर बी। ओके, तो ये माइनस भी नहीं आएगा, ये यहाँ पे माइनस नहीं होगा। ओके, माइनस नहीं होगा ये। सो लेट अस से वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2v e टू द पावर v माइनस 1 बाई ट्वाइस e टू द पावर v, और ये v को आप ले जाते हैं माइनस b, तो ये क्या हो गया y इंटू डी वी बाई
dy इक्वल्स टू मिनट हैंग कर रहा है ये वाला इक्वल्स टू ये एलसीएम करो यहाँ से मिलेगा -1/2 e to the power p. Okay, so our next step is 2y into e to the power v dv equals to minus dy. तो ट्वाइस इंटीग्रेशन e to the power v dv हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन y को इधर लेके जाओ 1/y dy. तो ट्वाइस e to the power v का होता है e to the power v इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस c की जगह log c लिख थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा. So twice e to the power v equals to log of c by y, log a minus log b. तो ये हो गया twice e to the power v equals to e to the power v की जगह हम लोग x by y बैठा सकते हैं, v की जगह हम लोग x by y बैठा सकते हैं, log of c by y, mod of c by y. तो ये हो गया twice e to the power x by y equals to log of c by y जो है हम लोगों का, यह है हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ये हम लोग का जो जनरल सॉल्यूशन है वो देगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझ पा रहे हो कि जो प्रॉब्लम है वो एक ही टाइप का प्रॉब्लम है, एक दो प्रॉब्लम हम दिखा दे रहे हैं, बाकी तुम लोग जो भी टेक्स्ट बुक है तुम लोग के पास प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का है. नेक्स्ट जो टाइप है हम लोगों का वो टाइप है टाइप, यहाँ पे हम लोग का जो टाइप है ये हो जाएगा 6 नंबर टाइप. ओके, 6 नंबर टाइप. सो ये क्या हो जाएगा, ये है हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ये क्या है, इसका फॉर्मेट है dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q. अब ये याद रखना ये है कि जो p और q है फंक्शन ऑफ या तो x होगा और कांस्टेंट होगा. यहाँ पे जो p और q होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा, नहीं तो कांस्टेंट होगा. तो यहाँ पे नीचे जो है dx उसी का फंक्शन होगा p और q, और ऊपर dy जो है यहाँ पे y रहेगा. ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अगर सॉल्व करना है तो हम लोगों को निकालना होगा इंटीग्रेशन फैक्टर. इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा इसका, इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx. ठीक है, उसके बाद जो सॉल्यूशन है हम लोग सॉल्यूशन डायरेक्टली लिखेंगे, जैसे इस फॉर्मेट अगर है, इस फॉर्मेट का जो सॉल्यूशन होगा होगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx प्लस c. ठीक है, ये दोनों चीज़ को याद रखना है. ये दोनों चीज़ को अगर याद रखोगे तुम लोग तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टाइप है ये बहुत आसानी से हो जाएगा. सो लेट अस सी two problems. So this is our question number 15. Question number 15. This x log of x into dy by dx plus y इक्वल्स टू 2/x log of x. इसको सॉल्व करना है. तो पहले कौन सा फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करना होगा.
ठीक है, फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बाद उसका प्रॉपर मेथड लगा देंगे, बाद बाकी पूरा यहाँ पे इंटीग्रेशन है। तो लेट अस से x, इसको अगर x log से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू इस लॉग इस चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बाई एक्स स्क्वायर। देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पे p है x का फंक्शन और q है x का फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर निकलना होगा। सो इंटीग्रेशन फैक्टर हम लोग का क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है, 1 बाई एक्स लॉग ऑफ एक्स dx। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो log x का जो log x का अगर t धरे t अगर हम लोग ले लें तो इसका जो डिफरेंशिएशन है 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ, लेट अस से इसको कर ही लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, तो डी टी हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स। तो ये होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स की जगह लिखेंगे डी टी बाई टी, तो ये हो जाएगा e टू द पावर लॉग ऑफ t। यहाँ पे e और b बेस सेम है तो t हो जाएगा, t क्या है log x, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो गया log ऑफ x। इसके बाद हम लोग जो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन को हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर दैट इज log ऑफ x इक्वल्स टू q इंटू q क्या है 2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर दैट इज log ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस सी, राइट। ये था हम लोग का सॉल्यूशन। तो y इंटू लॉग ऑफ x इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे जो लॉगरिथमिक फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको फंक्शन 1 ले लेते हैं, इसको फंक्शन 2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 डी एक्स प्लस सी। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे बाई पार्ट्स, तो इसका अगर हम लोग बाई पार्ट्स करें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ जो पहला फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन बाहर रहेगा और एक्स टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन होगा। एक्स टू द माइनस 2 का क्या होता है, एक्स टू द माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा log ऑफ x इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, ओके, minus of integration ddx of log x that is 1 by x integration of this integration of x to the minus 2 dx सेम ही होगा, that is x to the minus 1 by minus 1 into dx। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला होगा ट्वाइस ऑफ माइनस, ये हो जाएगा माइनस log ऑफ x बाई x प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा x to the power माइनस 2 1 by x into 1 by x स्क्वायर दैट इज x to the माइनस 2। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, एक्स टू द माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1। तो ठीक है, चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स टू द माइनस 2 डी एक्स। तो ये क्या हो गया ट्वाइस माइनस लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, एक्स टू द माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स दैट शुड बी माइनस 2 बाई एक्स, 1 बाई एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ये है हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टाइप का प्रॉब्लम देगा उसको पहले तुमको फॉर्मेट में लाना होगा। एक बार तुम इसको फॉर्मेट में लेके आओ तो उसके बाद तुम लोग इसका जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो लेट अस सी आवर नेक्स्ट टाइप दैट इज 7। यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू था, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो। अगर यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई तो नीचे y है, मतलब
बोले जैसे यहाँ पे आर एक्स इक्वल्स टू एस, तो यहाँ पे आर और एस किसका फंक्शन होगा, जो नीचे रहेगा उसका वाई का फंक्शन होगा, राइट। फंक्शन फंक्शन ऑफ वाई, और ये कांस्टेंट भी हो सकता है और ये कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। और आप ऊपर देखो एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा इस फॉर्मेट का, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन आर डी वाई। ओके, नेक्स्ट इसका जो सॉल्यूशन होगा इस फॉर्मेट का क्या होगा, वहाँ पे क्या था, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू, वहाँ पे था q, तो यहाँ पे होगा s इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स था, यहाँ पे होगा dy प्लस c। ठीक है, इन दोनों चीज़ को याद रखोगे इस फॉर्मेट के साथ। तो इसका जो भी कुछ यहाँ पे इसका क्वेश्चन बनेगा वो तुम लोग कर सकते हो। एक क्वेश्चन दे देते हैं, करवा देते हैं। लेट अस से इस आवर 16th number question. Question is solve this. E to the power minus 2 root x by root x minus y by root x dx by dy equals to 1। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि dy को उधर लेके जाए, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा dy by dx, that is e to the power minus 2 root x by root x माइनस y by root x। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, dy by dx प्लस y by root x equals to e to the power minus 2 root x by root of x। तो यहाँ पे तो हम लोगों का ये पहला वाला फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये कर लेते हैं, उसके बाद इस फॉर्मेट के क्वेश्चन दिखा देंगे। तो डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स है। यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, ए टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर इंटीग्रेशन पी क्या है 1 बाई रूट एक्स डी एक्स। तो ये 1 बाई रूट एक्स मतलब एक्स टू द माइनस ऑफ, एक्स टू द माइनस ऑफ प्लस 1 बाई माइनस ऑफ प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर 2 रूट एक्स। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर दैट इज e टू द पावर 2 रूट एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q, q क्या है हम लोग का यहाँ पे, q क्या है e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स, तो e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर जो है e टू द पावर 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये क्या होगा, y इंटू e टू द पावर 2 रूट एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा मतलब 1, सी 1 बाई रूट एक्स, राइट, दोनों ऐड हो जाएगा तो e टू द पावर 0 दैट इज 1 बाई रूट एक्स प्लस सी, फिर डी एक्स होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, y इंटू ई टू द पावर 2 रूट एक्स इक्वल्स टू 2 रूट एक्स 1 बाई रूट एक्स का 2 रूट एक्स प्लस सी, तो ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 2 रूट एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स। ठीक है, नीचे उतरेगा ऊपर जाएगा तो टू द माइनस 2 रूट, ऐसे भी ये हो सकता है। ठीक है, सो इस फॉर्मेट का एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो अभी फॉर्मेट सीखे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, let us say we have to solve y into dx plus x minus y cube into dy equals to 0। तो ये क्या हो जाएगा, dx by dy प्लस x by y
dy से पहले डिवाइड कर दिए, फिर y से डिवाइड कर दिए, तो x बाई वाई माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखो dx बाई डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल्स टू एस। आर और एस यहाँ पे फंक्शन ऑफ y है, राइट। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन आर डी वाई। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन आर क्या है, 1 बाई वाई डी वाई। तो हो जाएगा e टू द पावर लॉग ऑफ वाई। ये और ई सेम है तो ये हो जाएगा वाई, ठीक है। आंसर क्या है, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा हम लोग का एक्स इंटू, सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर दैट इज वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस। एस क्या है, एस है हम लोग का वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर दैट इज वाई इंटू डी वाई प्लस सी। तो क्या हो गया, वाई क्यूब डी वाई प्लस सी, दैट इज वाई टू द पावर 4 by 4 plus c. Okay, so what is the solution, xy equals to y to the power 4 by 4 plus c is the required solution, ठीक है। तो ये जो टाइप का प्रॉब्लम है ये सब बहुत ही आसान होता है, एक बार तुमको थोड़ा प्रैक्टिस करके इसको उस फॉर्मेट में लेके आना हो। एक बार तुम उस फॉर्मेट में लेके आए तो उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक प्रॉब्लम सम देख लेते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम सम देख लेते हैं ताकि उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फॉर्म करके कैसे उसको सॉल्व करना है ये हम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। सो लेट अस से वन प्रॉब्लम सम, क्वेश्चन नंबर 18, ओके। इफ द टेंजेंट if the tangent at any point p of a curve meets the axis of x in t, find the curve for which OP equals to PT, O being the origin, O being the origin. So if the tangent at any point P of a curve meets the axis x in P, तो लेट अस से इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो ग्राफ है लेट अस से उसका ग्राफ है ऐसे, ये कोई कर्व, ग्राफ कर्व है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और इसका जो टेंजेंट है, इसका जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस में कहाँ से जाएगा, टी से जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये टी है और ये ओरिजिन है ओ, ठीक है। तो ओ से ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दो, ओ से ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दो, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये है पी, लेट अस से दिस इज एक्स कॉमा वाई। तो एफ एक्स कोई कर्व है और पी एक्स कॉमा वाई इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है। तो पी के ऊपर टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप, राइट, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, लेट अस से दिस इज स्मॉल एक्स। और ये एक्स एक्सिस में टी में इंटरसेक्ट करता है, राइट। तो टी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, उसके लिए क्या करना होगा, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टी
ठीक है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम लोग को क्या पता है, वाई इक्वल टू क्या करना है, 0। एक्स में वाई 0 होता है, राइट। तो अगर यहाँ पे वाई इक्वल टू 0 हम लोग बैठा दें तो ये हम लोग का हो गया 0 माइनस वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स, से हो गया कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ टी, टी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई। एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, क्या 0। तो पी टी जो लेंथ है वो लेंथ क्या होगा, रूट अंडर ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, दैट इज x माइनस y इंटू डी एक्स बाई डी वाई इसका होल स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, रूट अंडर ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, पी टी इक्वल्स टू ओ पी, राइट। क्वेश्चन में बोल दिया क्या, पी टी इक्वल्स टू क्या होगा, ओ पी। एक मिनट हैंग कर रहा है, तो क्या होगा, पी टी इक्वल्स टू ओ पी, पी टी इक्वल्स टू ओ पी, ये बोल दिया। पी टी का जो लेंथ है हम लोग निकाल लिए, रूट अंडर ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आ गया पी टी। और ओ पी, ओ पी क्या है, ओ पी वो है ऑरिजिन, ऑरिजिन से एक्स वाई का डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोथ साइड में स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर यहाँ से चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस एक्स। यहाँ पे अगर हम लोग उसके साथ एक्स रखें तो ये डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस डी वाई बाई वाई। सो ये हो गया, वो साइड में आप इंटीग्रेशन कर दो, राइट। से हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस लॉग ऑफ वाई प्लस सी की जगह लॉग सी लिखते हैं तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट। से हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर प्लस ले तो लॉग ए इंटू बी होगा, तो लॉग ऑफ सी इंटू वाई होगा। अगर माइनस ले तो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी का फॉर्मूला लगेगा, तो लॉग ऑफ सी बाई वाई हो जाएगा। तो एक बार इसके साथ इसका इक्वल होगा, इसका इक्वल होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लॉग यहाँ से उठ जाए तो एक्स इक्वल टू सी वाई, ये एक इक्वेशन हो सकता है, और नहीं तो एक्स इक्वल टू सी बाई वाई, ये भी हो सकता है। तो ये जो हम लोग का जितना फॉर्मेट था, ये जो सारा फॉर्मेट हम लोग देख लिए और प्रॉब्लम सम भी हम लोग किए। और बाकी देखो यहाँ पे जो बाद बाकी टेंजेंट नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमा, इसका ये जो चैप्टर का जो एप्लीकेशन है और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है वही यहाँ से चेक किया जाता है। एक बार तुमको ये सब प्रॉब्लम दे दे तो तुम्हारा जो बेसिक जो फॉर्मेट है, पहला काम तुम्हारा होगा कि उस फॉर्मेट में उसको लाया जाए, कैसे भी करके जितना फॉर्मेट तुम्हारे सिलेबस में है, जो हम सिखाए इतना ही फॉर्मेट तुम्हारे सिलेबस में है, उसके बाहर कोई फॉर्मेट नहीं है। तो जो फॉर्मेट है पहला काम है तुमको उस फॉर्मेट में एनी हाउ लेके आना होगा। इसके लिए तुमको थोड़ा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना होगा, एक बार वीडियो देख लो उसके बाद
जो जो अपना टेक्स्ट बुक है खुद के पास, वो तुम लोग प्रैक्टिस करो। जितना देखो प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की, तब तक तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस हो नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यहाँ तक ख़त्म करते हैं। और अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।